मोहम्मद साहब आए हैं आई गेस جی इनको عامر جی جی ایم ڈی علی صاحب بولیے. ہلو آواز جی آ جی رہی Hello. ہے؟ بولیے سر. Ji and عامر welcome. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. عامر جی اتنا کرٹیسائز کر رہے ہیں آپ اسلام پہ اللہ پہ, ہاں جی. اتنا کرٹیسائز کر رہے ہیں آپ جی. پیدا ہونے کو اور موت کو, یہ کون سی طاقت ہے جو آپ پیدا ہوئے ہیں, جو زندگی گزار رہے ہیں اور مر جا رہے ہیں؟ آج اتنا कौन सी بول رہے ताकत ہیں है ہاں کہ جو آپ کو کوئی بھی کیا ہو, طاقت ہوگی سر پر آپ کے قرآن والے اللہ کی طاقت نہیں ہے یہ. ارے کائے کا اللہ بھائی, کیا ہاں مطلب کیا کیا غلط بولا اللہ کے اوپر؟ کون سی بات غلط بولی؟ ابھی تک تو قرآن سے ہی بول رہے ہیں ہم لوگ. نہیں قرآن کی بات آپ کی سمجھ سے باہر ہے, آپ سمجھ نہیں سکتے کیونکہ اچھا اللہ کیوں؟ کی کیا حکمت ہے. ارے پہلے کیسے آپ اللہ سنیے, کی پہلے آپ نہیں مجھے نہیں نہیں, کیوں کیوں اللہ ہر کی چیز جو ہے کیوں نہیں نہیں, قرآن ہماری آپ بات اگر باہر کیوں ہے باہر؟ سمجھتے ہو قرآن کو, آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے کیونکہ آپ سمجھ ہی اس کو نیگیٹو انداز میں سمجھ رہے ہیں, تو نہیں آپ تو کو اس کو اور سمجھ کیسے میں نہیں آ سمجھوں میں؟ ارے اس کو سکتی کیسے سمجھوں زندگی. پھر؟ اچھا پہلے آپ یہ سمجھیے, آپ جو ہے نا پیدا ہوئے, یہ زندگی گزار رہے ہیں, مر جا رہے ہیں, یہ کون سی طاقت آپ کے پیچھے؟ آپ ایسی جو ہے نا ہو جا رہی گا زندگی, ایک سیکنڈ زندگی بھائی ایسی صاحب. جناب ہاں زندگی دو اور دو, ایک سیکنڈ محمد صاحب, دو اور دو چار ہوتے ہیں, اس کو آپ پوزیٹیو سائڈ سے دیکھو چاہے نیگیٹو سائڈ سے دیکھو, چار ہی ہونے ہیں وہ. تو قرآن کو آپ بھائی نیگیٹیوٹی سے پڑھنا, پوزیٹیوٹی سے پڑھنا کچھ نہیں ہوتا. قرآن پڑھا, یہ جس کو پہلے جو سمجھ میں آئے وہ بات کر رہے ہیں. نہیں تو قرآن کو اور کیسے سمجھے ہم لوگ؟ قرآن کو ایسے کیسے سمجھے پھر؟ سمجھ ہی نہیں آ رہا آپ کو کیسا آپ عقل کیسا گروی سمجھ رکھے رہے ہیں؟ نہیں ہم نہیں, نے تو آپ اپنے کیسے قرآن سمجھتے ہیں؟ ایک سیکنڈ, تو آپ کیسے قرآن سمجھتے ہیں ایم ڈی جی؟ چلیے پہلے مجھے یہ بتائیے, آپ جی جو پیدا ہوئے, آپ جو زندگی گزار رہے ہیں, مر جا رہے ہیں, آج تھوڑا دماغ اللہ نے دیا, آج اللہ کو اتنا کس نے کہا؟ نہیں کریٹیسائز. نہیں 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 نہیں, آپ نے اللہ کو دیکھا؟ اللہ کو اگر دکھتا تو آپ جو اتنا بول رہی ہو نا اتنا نہیں 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 بول نہیں پاتے. نہیں 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 ارے نہیں اللہ نہیں نہیں, اللہ کدھر ہے پھر؟ اللہ کدھر ہے؟ میں میری تو جائیں بولتی گے. کیوں نہیں بنتی؟ نہیں, اللہ آتا کیوں نہیں نیچے؟ ہم لوگ کتنی دیر سے اسٹریمنگ کر رہے ہیں نا, میں نے کتنی اللہ دیر سے بولا کچھ ہے, بولا؟ نہیں نہیں, اللہ سنو, کتنے ہے بھائی؟ اللہ کتنے ہے؟ کدھر گیا اللہ؟ اللہ اپنی اللہ کچھ جو ہے نا انسانوں کو اس لیے بنایا کہ وہ اپنی میری عبادت کریں. میں دکھوں گا نہیں, میری عبادت کریں, وہ آزمائش ہے تمہارے اوپر, نہیں, کیوں کیوں سمجھے؟ کیوں عبادت کرے اللہ کی؟ کیوں عبادت کرے؟ آپ کو پیدا کیا, اتنی زندگی دیا, ہنس رہے ہیں, ہم مسکرا نے رہے ہیں, کود رہے ہیں, ہنس رہے ہیں. ہم نے تو نہیں مانگا کہ ہم کو دنیا میں لے کے آؤ, پھر بعد میں ہم لوگوں کو جنت و جہنم کے لیے کرو. ہم نہیں نے تو نہیں نہیں, مانگا. آپ نے, ارے اللہ کی قدرت ہے, اللہ کئی چیزوں کو پیدا کر دیا, آپ کو بھی پیدا کر دیا, کئی چیزیں فرشتوں کیوں کو پیدا پیدا کیا, ہاں ملے عبید ہے. ہاں ہاں, تو جب آپ جو ہے نا دیکھو, ہاں آپ جو کیوں پیدا کیا بول رہے ہیں نا, وہ اللہ کئی چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے, اللہ ہاں کی مصلحت ہے. تو اللہ نے اچھا آپ کو تھوڑا دماغ کر دیا, آپ تو جو ہے نا اللہ کو جو ہے نا چیلنج ہی کرنے بیٹھ گئی. नहीं ایم मोहम्मद ڈی जी صاحب, मोहम्मद اللہ تو ہلو. بھائی, اللہ از اے ویری بیڈ پرسن. اللہ تو بہت ہی ایک غضب کا آدمی ہے, وہ خدا ہے کہ اس نے شیطان کو بھی پیدا کیا, جو شیطان جو گند کرتا ہے اس دنیا میں. اگر شیطان گند کرتا ہے تو کس نے گند کیا؟ اللہ نے گند کیا نا. آپ تو جواب ہمارا دینے اللہ دینا ان تعالیٰ کو ذرا, آپ جواب دینے دیں, شیطان پلیز جواب دیں جی. وہی تو دیکھ کے मोहम्मद آزما رہا ہے اللہ जी تعالیٰ نے آپ کو, ہو جائے گی. मोहम्मद जी چلو आपने जो بولو, ایم ڈی صاحب, ہمیں جی ایک بہتر ایک چیز میرے سمجھ کو سکتی ایک آدمی میرے کو ہے. بتاؤ. ہلو ہلو, ایک آدمی میرے کو بتاؤ, آپ بولتے ہو کہ قرآن ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہا, تو میرے کو ایک آدمی بتا دو دنیا میں جس کو قرآن سمجھ میں آیا ہے. سنو سنو سنو, وہ اسلام کو بہتر جانتے ہیں, ان کو قرآن شریف پڑھنے آتا, حدیثیں آتی ہیں, وہ ماحول میں زندگی گزارے سو ہے. الف امینا جی کو لام معلوم ہے, میم, میں امینا جی سے تو, آپ ٹھہرو نا الف بھائی. لام میم. امینا جی جو ہے بھائی, آمینہ جی جو ہے نا بچپن میں نماز پڑھے, قرآن پڑھے, جوان یہاں تک آئے زندگی, پھر جو ہے نا ان کی زندگی ختم ہوگی, ان کو معلوم ہے اسلام بہتر جانتے ہو نا. ٹھہرو, آمینہ جی سے بات کر رہا ہوں میں. جی جی کریں اچھا بات. اچھا ایم ڈی جی, میں آپ آمینہ سے جی ایک بات, جانتے نا بہتر. کیا چیز اب جو کیا ہے چیز اب سوچ کے آئے تو اللہ
सोच सोच खतर की मर जाओगी, लेकिन जो है ना कुरान को चेंज नहीं कर सकोगी यार। मैं नहीं समझी, सॉरी, आपका आवाज कट कट के आ रहा है। आप ये सोच सोच के, और आप लो आपका क्रिएटर है कौन? आप कैसा पैदा हुए, कैसा जिंदगी गुजार रहे हैं? मेरे माँ बाप ने मुझे क्रिएट किया। तो उनके माँ बाप उनको कौन क्रिएट किए? उससे पहले कौन थे? अरे उनके माँ बाप ने उनको क्रिएट किया, उनको क्रिएट किया। आपने पूछा ना मुझे किसने क्रिएट किया तो मैं कह रही हूँ मेरे माँ बाप। एक सेकंड आमना, मुझे ये बताएं, मतलब कोई गधे घोड़ों की कहानियों वाली किताब जिसमें जादू टोना नजर, ये हालत दज्जाल, ठीक है, याजूज माजूज, ये चीजें इस्लाम में भरी हुई हैं, इन चीजों को आप सच मानते हैं? मतलब तो इस वास्ते आप जो है ना एक्स मुस्लिम हो गए। अगर आप समझते तो जो है ना ये सब काम नहीं कर सकते थे आप। चले तो आप मुझे आमिना जी, बताएं, एक सेकंड आमना, एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड, आप एक मुझे सेकंड। बताएं कि आप दज्जाल जैसी किसी चीज में मानते हैं? इमाम साहब आप ठहरिए, आपको मालूम ही नहीं है, आप खाली देख रहे जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह को ठहर, मैं अल्लाह सुनती हूँ। थोड़ा- आप गधे घोड़ों की कहानियों पे बात करते हैं आपकी, आप दज्जाल जैसी किसी चीज में मानते हैं? कयामत के वक्त आएगी, नबी ने फरमाया है। अच्छा एक अरे क्वेश्चन है, एमजी, ओके एवरीबॉडी, ये मेरे ख्याल से इसको बड़ा शौक है मेरे साथ बात करने का, गिव हिम द मोमेंट। ओके, आप कहते हो अल्लाह इज द क्रिएटर, ओकी डोकी, अल्लाह को किसने बनाया? एक से पहले कुछ नंबर है क्या? बोलो मेरे को, एक से पहले क्या नंबर अल्लाह है? को किसने- यही सोच जीरो, सोच के तुम -1 -2 अरे -3। अरे अरे मैं आपसे हाँ। पूछ रही हूँ ना एमडी जी, अल्लाह को किसने बनाया है? गिने लेते हैं, 1 से गिनते हैं, 1 से है आपको दिमाग कुछ? तो भी 1 से अरे काउंटिंग मैं- शुरू होती है। 1 से काउंटिंग शुरू होती है। मैं आपसे 1 2 3 4 5 6 का जीरो का नहीं पूछ रही, मैं आपको पूछ रही हूँ अल्लाह को किसने बनाया? अल्लाह को जो है ना किसी ने नहीं बनाया। आपका ये जो दिमाग है ना, छोटा था थोड़ा सा दिमाग, ये सवाल कर बैठा आपको। जब मरने के बाद ये सवाल नहीं, सुनो, अल्लाह वही तो अल्लाह को कहाँ, अल्लाह को किसने बनाया, कहाँ से आया, अल्लाह की क्या है, हम क्या पता है आपको, कौन है अल्लाह? यही तो नहीं सोच सकते तुम। वो अगर सोचोगी तो जो है ना तुम अपने आप की मौत को जो है ना बचा लो तुम मौत से। आज जो दुनिया में, अरे मौत तो होना है भाई, मौत तो किसने नहीं चखना, सबने चखना है। अरे बाप रे एमडी जी, एमडी जी थोड़ा तमीज से बात कीजिए। सोच नहीं सकता अल्लाह के ये बारे में। कुछ नहीं कर सकता। यार देखो ये अभी जाहिल तक बंदा है यार, पढ़ा लिखा अरे है, अरे अरे समझदार इसकी होता तो इस्लाम नहीं देखो, छोड़ देता। इसकी मैं ना 1 2 3 कर दूंगी, ये बात नहीं है। हम जिसको छोड़ा थोड़ा सा इसका मीटर वो हो रहा है ना, उसको होने दो। आई डोंट माइंड इट। सुनिए, बाकी हो रहा है। सवाल का जवाब दें, अल्लाह को किसने बनाया, बाकी कोई ना बोले प्लीज। यस, अल्लाह अल्लाह को अल्लाह ने किसने बनाया? आपको बनाया है। अल्लाह देखो को तुम अल्लाह को किसने चैलेंज बनाया? करने बैठ, मेरे माँ बाप ने बनाया है। अल्लाह को किसने बनाया है? मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं कर रही हूँ अल्लाह को किसने बनाया है? ये नहीं बनाया, क्योंकि अल्लाह जो है ना इमॉर्टल है, तुम अच्छा। मॉर्टल हो, क्या अच्छा, रहे हो, ओके ओके, अच्छा बात कर रहे हो। एमडी, दोस्त तुम मर जाओ, एक उंगली MD नहीं तुम्हारी हिले, बाल नहीं हिलेगा तुम्हारा। अच्छा एमडी जी, आप मुझे एक बात बताइए, जब इंसान मुसलमान होता है तब इंसान शहादा पढ़ता है ना, हाँ, तो अल्लाह ने क्यों शहादा दिया है कुरान में? अल्लाह दिया है, तुमको क्या उसमें क्या बुरा लग रहा है? अरे तेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। अल्लाह कुरान में इमरान में वर्स 18 में शहादा क्यों दे रहा है? जवाब दो। तुम सुनिए, तुम अल्लाह की हिकमत को जो है ना समझ नहीं सकती। अरे तुम इतना तेरे को तू फिर मुसलमान क्यों है? तेरे को तू मुसलमान क्यों है? तेरे पास तो एक जवाब भी नहीं है, हिकमत नहीं है तेरे में, वो नहीं है तेरे में, ये नहीं है। अरे भाई तेरे में क्या है फिर? तू तो मुसलमान है, मैं तो काफिर हूं ना। मेरे में क्या है? मुझे जो क्रिएट किया है वो मुझे मौत दे रहा है, मैं उसको चैलेंज नहीं कर सकता। अरे कुरान का मतलब तो तेरे को पता होगा ना, मेरे को तो कुछ नहीं मालूम है। तू तो बता दे आमिना को, दूसरे को, कि अल्लाह शहादा क्यों दे रहा है? अरे अल्लाह शहादा दिया तो उसमें आपको क्या लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है? जब अल्लाह ने सारी किया है, बात सुन, की तारीफ करो, इबादत करो। अल्लाह इतना ऑलमाइटी है, इतना ऑल वाइज है, इतना ऑल नोइंग है, तो अल्लाह अपने लिए क्यों कह रहा है मैं एक खुदा हूँ, यारी यारिया क्यों कर रहा है? अल्लाह शहादा क्यों दे रहा है? तुम्हारे आजमाने के लिए,
तुम किस काय को आजमाने के लिए? ओए तरफ जाते कौन सा हैं? अल्लाह की तरफ जाते हैं या शैतान की? अरे इसमें क्या आजमाइश है? और एक और बात बता दो, एमडी हाथ जोड़ती हूँ, शैतान को छोड़ दो, बदबख्त कमबख्त शैतान का पीछा छोड़ दो, शैतान भी अल्लाह का वो है, बनाया हुआ चीजें, समझ में आई? बस करो उसका कौन है फिर तुम्हारे पीछे? शैतान ही है। हाँ, तेरी पीछे लगा हुआ हो शैतान। अल्लाह को चैलेंज कर रहे हैं। अल्लाह को कुरान की आयतों में क्रिटिसाइज। मुझे भी जरा बात करने दें। शुरू पहले आप बोले। हाँ, आमना जरा 2 मिनट दे दें। एमडी जी आप बात करें, क्या कहना चाह रहे हैं, पहले आप बोले। मैं बात कर रहा हूँ ना आमिना जी से। जी आप बात करें। थोड़ा बात तमीज से करो ना। अमीना जी क्या कर रहे हैं? आप ठहरिए। आमिना जी तो बुलडोजर चला देती हैं। हाँ तो चला देती है, तो अमीना जी फिर भी इज्जत से चलाती है। तुम्हारी तरह तुम करके नहीं बात करती। अमित भाई ठीक है, कोई बात नहीं। एमडी आप बात करें प्लीज। भाई मैं आमिना जी बोल रहा हूँ। आमिना जी एकदम मुस्लिम जो है ना मुआशरे से जिंदगी गुजार के आई है। मुस्लिम मुआशरा बहुत बेहतर जानती है। तो आप इनको वापस मुसलमान कर लेना यार, ले जाए इनको, हम तो दे रहे हैं। अच्छा एमडी जी आप मुझे एक बात बताइए। ओके आप मुझे ये बताइए, हर चीज एक तरफ, मैं इस्लाम की तरफ वापस क्यों आऊं? इस्लाम की तरफ इस वक्त वापस आओ। आपकी जिंदगी कुछ भी नहीं है। दुनिया आपकी जो ना मौत आपका खातिमा है। आपने जो दुनिया में किया उसका हिसाब किताब अल्लाह के पास देना होगा, और अल्लाह डिसाइड करेगा कि आप जन्नत में जाओगी या दोज़ख में। Oh my God. अच्छा एक सेकंड बहुत बड़ा ब्रेन वॉश इंसान है यार। अच्छा आप मुझे ये बताइए एमडी जी, मुझे शहादा देना है ना अल्लाह को पाने के लिए, ठीक है? अल्लाह मतलब एक खुदा है, ठीक है ना? मुझे वापस इस्लाम आने के लिए सबसे पहले शहादा देना होगा। अच्छा शहादा देने से पहले मुझे आप ये बताइए, मेरे लिए क्या फायदा है इस्लाम के अंदर आने के लिए, सवाए कि जन्नत होगा? तो जन्नत का भी कोई गारंटी नहीं है, मगर एक औरत के नाते, एक मुसलमान औरत के नाते उनके लिए क्या फायदा है एक औरत के लिए, बताइए मुझे। आप जो है ना जन्नत में जाएगी मेरी बहन। क्या गारंटी है? नहीं आप नहीं आप ये बताइए, एक औरत मुझ जैसी मुस्लिमीन के लिए क्या फायदा होगा? क्या फायदा किसके लिए? मेरे लिए मेरे लिए क्या है? आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना इस्लाम के। इस्लाम एक औरत मुझ जैसी के लिए बहुत अच्छा है, मुसलमान के लिए इन द फ्यूचर। तो बताइए, तो मैं इस्लाम को कबूल क्यों करूं? मुझे क्या मिलने वाला है? भाई आप मरने के बाद जन्नत में जाओगी, अभी आपका फायदा है। आपके पास कोई गारंटी नहीं है इसकी कि कोई मैं गारंटी है दुनिया में? दिमाग जो है ना वो गारंटी, क्योंकि तुम मॉर्टल हो, तुम मरने वाली हो, तुम्हारे को मौत आने वाली है। कुल्लू नफ्सिन बताओ तो क्या है? अच्छा वो तो मुझे भी पता है मैंने मरना है। भाई मुझे ये बताइए, मैं इस्लाम को क्यों करूं? तुम दुनिया में बस एक आजमाइश की चीज हो। अल्लाह को समझ के जो है ना जिंदगी गुजारे तो आपकी जिंदगी कामयाब है। अच्छा देखो एमडी जी, मर्द को इस दुनिया में 4 शादी का इजाजत है, औरत को मारने का इजाजत है, बहुत कुछ चीज है उसके लिए फायदे। तो मेरे लिए क्या है भाई, ये तो बताइए मेरे को। अमीना जी मरना तो सबको है, लेकिन मोहम्मद साहब इस्लाम में जाने के बाद ये बहुत मजे का, इसको 2 मिनट जब छोड़ते हैं। अच्छा मुझे बताइए, आमिना जी को सवाए चादर के सर पे पहनने के, मियाँ से मार खाने का मुझे और क्या फायदा है इसमें? क्या मार खा रहे जी, क्या मार खा रहे? हर मुस्लिम माशरे में मार खाने वाला मारा शैतान लगा है सारी इंसानियत के पीछे। नहीं सारी इंसानियत के अरे नहीं मेरे दोस्त आप इस्लाम बेच रहे हो तो मैं सीरियसली सूरह अल-निसा वर्स 34 हेलो जी, मुस्लिम माशरे में लग रहा है कि आदमी औरत को मार रहा, क्या नॉन मुस्लिम माशरे में नहीं दिख रहा आपको? अरे हम तो इस्लाम की बात कर रहे हैं ना, इस्लाम इज परफेक्ट। आप दूसरे माशरे की क्या बात कर रहे हो ना, हम तो इस्लाम में बात कर रहे हैं, द परफेक्ट रिलीजन। सुनो भाई, सबको अल्लाह ने पैदा किया। अगर मुस्लिम माशरे में अगर वो कोई गलत काम कर रहा तो उसको भी सजा मिलेगी, नॉन मुस्लिम में भी सजा मिलेगी। पता क्या, मुस्लिम माशरे में अच्छा मैंने जन्नत जाना है। ओके चलो ठीक है। जन्नत में क्या मिलेगा अमीना जी को? मुझे जन्नत में क्या मिलना है? चलो जल्दी करो बताइए मुझे जन्नत में क्या मिलने वाला है? वो खुशियां, वो अच्छी जिंदगी मिलेगी, कभी सोचा भी नहीं था, देखा भी नहीं था दुनिया में। That's not good enough। एक मर्द को
की, 72 हूरें मिलेंगी, मुझे ये बताइए जन्नत में क्या मिलेगा, क्योंकि वो अच्छी जिंदगी तो मुझे इधर भी मिल रही है, मैं बहुत खुश हूँ, अच्छे अच्छे दोस्त मिले मुझे, मिले बड़े प्यारे प्यारे बेहतरीन दोस्तें मिली है इस्लाम छोड़ के। तो आप मुझे ये बताएं इस्लाम को छू के वापस मुझे क्या मिलने वाला है? तो सब दोस्त कौन बनाया? वो सब जो इंसानियत को पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह ही तो है। अरे वो तो हो गया, बात आगे इंसानियत- करें। यार जन्नत में रैशनैलिटी पे आपको बात मिलेगा। करना चाहिए आमना, अरे, हम लोग अरे, रैशनैलिटी पे खुदा दज्जाल कितने याजूज है? माजूज इन चीजों पे बात करा करो ताकि इन्हें बेवकूफ लगे कि हम क्या बेवकूफी मान रहे हैं। हमें रैशनैलिटी पे बात करें तो किधर है ये अल्लाह, किधर है ये अल्लाह, मैं इसकी शहादा लूं ना, किधर है ये औरतों को अल्लाह? पीट एक सेकंड, आमीना इसकी जी, शहादा, बोलिए। अच्छा ये खुदा किधर की मैं इसकी शहादा लूं? क्या शहादा? किधर है? किधर लू शहादा? उसके मतलब गायबाना पे तो ईमान लाओ। नहीं, मतलब जब अगर आप नहीं, आप जब शहादा देखो ना, शहादा का मतलब ये हो ना, आई विटनेस दैट देयर इज वन गॉड। अच्छा, मैं विटनेस करने के लिए तैयार हूँ, मगर खुदा किधर है? खुदा अपनी जगह है। खुदा की तरफ है। खुदा कुदरत है तरफ। नो, अगर मैंने अभी किसी खुदा का शहादा दिया तो इसका मतलब है मैं किसी अंधा होके किसी एयर को, किसी हवा को मैं शहादा दे रही हूँ। खुदा किधर है? अल्लाह किधर है? सुनो, खुदा आपके सामने आके बैठना, बोलो आमीना मैं खुदा हूँ, ऐसे बात कर रहे हैं आप। आपके यही तो जो है ना वीक पॉइंट समझते हैं आप। तो अरे नहीं, अरे एमजी जी, नहीं, यहाँ पर आप मेरे साथ सही नहीं हो रहे हो, ये आप इंसाफ नहीं कर रहे हो। मूसा के सामने अल्लाह उतर गया था नीचे, ये आप इंसाफ नहीं कर रहे हो आमीना जी के साथ। आप जाके अल्लाह से गुफ्तगू कीजिए और अल्लाह को मेरे सामने लाइए। हाँ, वो नया अल्लाह जो है ना आप बराबर देखेंगे, बेफिक्र रहो। आपको जैसा जो है ना आपका इंतकाल हो जाएंगे, आप मर जाएंगे, आपको सब समझ में आ गया। ये दुनिया में अल्लाह ताला वक्त दिया, आपको टाइम दिया समझने के लिए, संभलने के लिए। जब आप मर रहे हैं तो आपको एहसास नहीं है मेरी मौत होने वाली है, या मौत के बाद आखिर होगा क्या? ये काम दिमाग आपका काम नहीं कर रहा। यही एक धमकी चीज से- कुरान में तुम्हारा अल्लाह दे रहा है और यही धमकी तुम इधर दे रहे हो। गुनाह करोगे तो अच्छा, अगर इतना यकीन है एमडी जी तो अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह के नबी की हदीस है जिसने 7 अजवा खजूर खा ली उस पे ना जादू असर करेगा ना जहर। आप एक काम करें, मैं आपको 7 अजवा खजूर देता हूँ, आप खुद ले आए, फिर एक अच्छा जहर मैं आपको देता हूँ। नबी के कॉल पर ईमान है, आप जहर खा के दिखा दें, हम ईमान ले आएंगे, आप बच जाएंगे, आपसे भी छुटकारा मिले, आपकी झूठी गधे घोड़ों की कहानियों वाली सोच से भी हमें छुटकारा मिले। अच्छा, ये सब अल्लाह की मसलियत है। सुनो, नबी का कॉल है, अमल करिश्मे हो जाना, अल्लाह आ जाना। जहर भी असर नहीं करेगा। नबी ने कहा, बुखारी की हदीस है 5445, अमल करके दिखा लें। नबी के कॉल पे शक है क्या? ईमान नहीं रखते उन पे? जो आप नबी की बात पे शक, काफिर हो, नबी की बात पे शक कर रहे हो? एमडी जी, मुझे जितना, नो ऑफेंस टू एनीथिंग, मगर जितना मुझे मेडिटेशन से सुकून मिला है ना, ठीक है ना, उतना मुझे नमाज से कभी भी नहीं मिला। सॉरी। देखिए शैतानियत का क्या दर्जा हासिल कर चुकी है आप। शैतानियत का कौन से लेवल पे जा। नबी के कॉल पे तुम शक कर रहे हो, तुम शैतान हो। आमना छोड़ो, अजवा खजूर पे रहो थोड़ा। नबी के कॉल पे शक कर रहे हो, काफिर हो तुम। शैतान भी किसका बनाया हुआ चीज है? शैतान भी बेकार है भाई, तुम नबी के कॉल पे शक कर रहे हो। शैतान भी अल्लाह ने बनाया है, इसका मतलब है अल्लाह ने ही शैतानत फैलाई है। गन सारा अल्लाह कर रहा है। बड़ा जी, आपको बता रहा हूँ, शैतान छोटा गुनाह भी करा था, गुनाह भी करा था। अरे मुझ पे फर्क नहीं पड़ता। हम ना एक्चुअली एक चीज है कि खुदा शैतान है, एक्चुअली वही जन्नत में फल रख रहा है जिसे खा के आदम और हव्वा गुमराह हो, वही आदम से फरिश्तों को सजदा करवा रहा है, ठीक है, अपने सिवा जो है फिर उसके बाद इब्लीस जो जिन्नात है वो काफिर हो गया सजदा ना करके, फिर इब्लीस काफिर होके जन्नत में चला गया। काफिर जन्नत में जा नहीं सकते, वो काफिर होके जन्नत में जा रहा है आदम हव्वा को बहकाने, और जन्नत में गुनाह हो रहा है जहाँ गुनाह और नेकी हो ही नहीं सकते है। तुम खाली बोलते जा रहे हैं, आपको वो चीज समझ में नहीं आई। अच्छा, इसलिए आप आ गई तभी तो छोड़ दी भाई, मदरसे भी पढ़ के निकला हूँ। अपोस्टेट, एक सेकंड एमडी जी, मेरे पास आपके लिए छोटा सा चैलेंज है, मेरी बात सुनिए, मैं मजाक भी नहीं कर रही। ये आप एक काम कीजिए, इस प्यारी अपनी सो कॉल्ड आमिना के लिए, काफिर के लिए, आप कुरान से एक सूरा वर्स ढूंढ के मेरे पास पेश कीजिए जहां पर अल्लाह कहता है कि आप मोमिन हो, आप मुसलमान, किसी और हदीस को फॉलो करो सवाए कुरान के। जहां पर अल्लाह
जहां पर अल्लाह कहता है कुरान में, रैशनैलिटी पे रखा करो, ये जंप करेंगे जलेबी की तरह फिर। ओ नहीं, ये चीज है नहीं, इसलिए मैं कुछ इसका जलेबी क्या बनाऊंगी, इसका जलेबी मैं बनाऊंगी। एमडी जी, कुरान में कहीं आप मुझे ऑलरेडी जलेबी होते हैं ये लोग यार। नहीं नहीं, इसका आप पूरा उनको बात करने दें आमना जी, उनको टाइम तो दें बोलने का प्लीज। तमाम साहब बोलने दें, एमडी साहब बात करें। आमिना जी, हाँ वो क्या बोलते हैं, जैसा आप जो है ना, आप वो छोड़िए, अब ये समझिए, आप मॉर्टल है, आप जो है ना मरने वाली है, आपको मौत आने वाली है। सुनिए, अरे आएंगे ना आएंगे, सारे इंसान नहीं मर रहे, इंसान मर रहे ना मर रहे हैं। खुदा कैसे सच्चा साबित हो गया? जी, जी, तुम्हारी मर रहे गधे हैं, घोड़ों मर की रहे हैं। कहानियां कहाँ से सही साबित हो जाती हैं? अरे अल्लाह मेरे ताला को पता बता है, मैं मरना है, तेरे को मरना है, सबने मरना है, आगे जाओ भी। हाँ आगे जाओ, आगे जो है ना वही जो आज जो अल्लाह को आप पहचान नहीं सकी आज, इसका ही आप बहुत बड़ा हिसाब किताब देना होगा आपको। ये बात होगी अल्लाह को जो आप एमडी साहब, पहचान, एमडी साहब ये अल्लाह बात ने होगी। थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहे अल्लाह पे, इस्लाम पे। जब मर जाओगी तो आपकी उंगली हिल नहीं सकेगी। आज इतना बोल छपा रही है आप, जब आप मर जाओगी तो आपकी उंगली हिल नहीं सकोगी। आमिना उठो, उठोगे तो नहीं उठ पाओगी आप, खत्म होगा खेल क्या पता आपका। आप इस्लाम के गलत फिरके पे हो, आप मुनाफिक हो और ज्यादा बड़े जहन्नम पे जाओ काफिरों से। हम एक फिरका जन्नत में जाएगा, नबी ने तो ये कहा है, आपने उस पे तहकीक कर ली कौन सा जन्नत है ये चले। अगर आप समझते हैं अरे भाई हम मर जा रहे हैं, ये कोई मामूली सी चीज पे अगर तुम अरे तो समझते मरना हैं भाई, सही फिरका तो देखना पड़ेगा ना। सही फिरका आपने देखा है इस्लाम में कौन सा फिरका सही है मरने से पहले, आखिरत जो बचा ले? तुम खत्म खाली वरना कलमा नमाज पढ़ लो, वमाज सब रसूल बेकार हो गया। सुनो, पहले तुम कलमा पढ़ लो और रसूल को मान लो पहले, उससे जन्नत समझे? ही नहीं हो रहा है ये ना। अल्लाह ही नबी को ना ने बोल बोला के एक फिरका मेरी उम्मत का जन्नत में जाएगा, बाकी सब जहन्नम की आग में झोंक दिए जाएंगे। बस इब्ने माजा हदीस 3991 और वेरी गुड, 3992। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जाओगे फिर निकलोगे नहीं, तुमको दोज़ख में से अरे तुम जनाब, तो तौहीद से कोई तुम तो जन्नत ही नहीं हो रहा ना। परमानेंट हो शैतान ने जाओगे। तो गैरुल्लाह को सजदे से इनकार करा है, फिर भी काफिर है। इमाम साहब तुम तो परमानेंट हो जाओगे, जो मानने वाले हो फिर भी निकल जाएंगे जाके दोज़ख में, जाके फिर भी निकल जाएंगे, जन्नत में आ जाएंगे। तुम तो मान रहे हो? नबी का कौल है कि 7 अजवा खजूर जो खा लेगा दिन में, उस पर जहर और जादू असर नहीं करेगा। आप 7 अजवा खजूर खाएं और 7 जहर भी खा लें, क्या नबी के कौल पे शक जिंदगी दी करते है तुम हैं? अल्लाह, काफिर हैं क्या? थोड़ा दिमाग अल्लाह ने क्या दिया, चैलेंज कर रहे हैं, उंगली नहीं लेगी आपकी मरने के बाद। आप अरे जो कर तो रहे हैं नबी दुनिया के में कौल पे अमल तो करो। अरे अजवा खजूर पे आओ यार, नबी का कौल नहीं मानते क्या तुम? कैसे मुसलमान हो, नबी की बात नहीं मानते? खुदा का खौफ नहीं है? अल्लाह के आखिरी नबी खातमुन नबीय्यीन को नहीं मान रहे हो तुम? रहमतुल लिल आलमीन। अरे क्या कर रहे हो भाई? अरे मेरी सुने लाना रे, तुम मानता नहीं नबी भाई के मेरे कौल को? ऊपर ये, हेलो इमसाब, तुम्हारी मौत आएगी तो होगा क्या पहले वो सोचो तुम। दुनिया में इतने लोग बढ़ रहे हैं आंखों के सामने, तुम्हारा भी एक दिन नंबर है। क्या करोगे तुम, क्या हिसाब दोगे, कौन से क्रिएटर के पास जाके ठहरोगे? अरे अल्लाह की तरह हेलो? धमकी देना बंद करो भाई, कोई ढंग की बात आमिना जी, बताओ। अल्लाह हेलो? की तरह तुम भी धमकियां दे रहे हो ना। दिस इज फनी, आई मीन दिस इज हिलेरियस, आई मीन रियली। देखो देखो देखो, अरे तुम्हारा नबी हेलो, कह आमिना? रहा है मेरे साथ होगा, बुखारी में मुंह भी नहीं कह सकता। मेरी फातिमा बेटी जो मांगना है मांग ले। तो ये बातें मत करें भाई, नबी जन्नत की गारंटी नहीं दे रहा। आप कैसे ले रहे हो कि नबी के पीछे चल के जन्नत में चले जाओगे? वाह वाह वाह। जाओगे भाई, क्यों परेशान हो रहे? बेफिक्र रहो तुम, बेफिक्र रहो तुम, इस्लाम पे कायम रहो, बेफिक्र रहो तुम, जन्नत में ही जाओगे। अगर अल्लाह ताला तुमको आजमाइश के लिए बैठा, अगर आजमाइश करने वाला तुम्हारे सामने अगर आके बैठा ना, तुम एक गुनाह नहीं कर पाओगे। आज जो इतना चैलेंज कर रहे हो अल्लाह को, वो नहीं कर पाते। ईमान लाना चाहता हूँ मैं, क्या बनूं? शिया बनूं, सुन्नी बनूं? आप गारंटी नहीं कर सकते हो। बंदी अहले हदीस। आप गारंटी नहीं कर सकते हो कि कोई भी जो है ना जन्नत में जाएगा, क्योंकि कुरान में नहीं लिखा हुआ, कुरान में लिखा हुआ कि आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टू मी। समझ में आई? नोबडी नोज। जी बड़े आए उधर बता रहे हो कि जन्नत में हो। अरे भाई जन्नत को देखा है तुमने? आमिना जी का स्क्रीन बड़ा करो आपका, आप आए स्क्रीन पे खाली। कौन से फिरके से हो आप? बस ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाले हम। ये फिरके क्या है नहीं जो फिरका फिरके कौन सा है?
अरे यार ऊपर वाले किस दो तरह से ये तो बताओ। आप तो जो मैं दोजख में इस्लाम- जाएंगे निकलेंगे। नहीं, अगर मैं इस्लाम कबूल करूं तो कौन से फिरके में आऊं मैं? आप जो है ना अल्लाह और अल्लाह के रसूल और हदीस पे चलो, खत्म होगी बात बस। अरे नहीं, नहीं, सभी फिरका कौन फिरके ये सा? बोल रहे हैं, वो तो बताओ किस फिरके में। तो हदीस को तो मना रहा है वो इमाम हमारे, वो आप हदीस को मान नहीं रहे। ये फॉलो कर लो बस है। अच्छा नमाज एक कैसे जगह पढ़ूं? सीने पे हाथ बांध के रफ़ायदैन करूं नहीं करूं? हाथ खोल के पढ़ना है, सलाम फेरना है या फिर हाँ, सजदे करना है अहले तशरीह की तरह? कौन सा हदीस फॉलो करते हो ये भी बता दो। साहब मौत का एक दिन मुहैया है, रात भर नींद क्यों नहीं आती? अरे भाई बहन कर से यार अब और नहीं जेल से बन रहा। समझे? मौत का एक दिन मुहैया है, याद रखिए बात ये। अरे आप जो चैलेंज कर रहे हैं ऐसे अरे अरे, मौत भी इसकी मूसा अलैहि सुनने सलाम लग गई है। बोले से भाई चैलेंज करे। सुनो मैं बोल, सुनो सुनो एमडी साहब, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम मौत का दिन भी एमडी साहब पैदा मेरी होती एक बात बच्चे रोता सुने। है, ये कहता होगा मौत मौत। एमडी साहब, आपने मेरे- वो सुना है सुम्मुम लगता है मरने के बाद- कौम ला याकिलून। भाई तो गारंटी खैर नबी ये नहीं कर आमेना रहा, जी बुलडोजर अपनी चलाने उम्मत की नहीं कर रहा, अरे एक फिरका जन्नत में। मोदी जी का बना है बुलडोजर चाहिए। लिसन, अरे बुलडोजर बड़े को आए जन्नत एमडी में जी। जाना चाहता हूँ, ओए, बताओ तो कौन सा फिरका मुझे जन्नत में ले जाएगा, मैं चल लूं उस पे भाई। नहीं न के कौन सा मदद आप करो ना। सबसे पहले तो एमडी जी आप मुझे ये बताइए, आप तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह मोमिन आमेना बड़े। जी नहीं नहीं एक ये सेकंड, बता, आप हदीस को फॉलो करते हो, कुरान को और हदीस को? ओके बोलो। आप जी एक जवाब दीजिए, ये कौन सा कुरान- हदीस हाँ। कौन से हदीस को आप फॉलो करते हो 100%? मुझे बताइए। सबको फॉलो करते हैं आप, उसमें जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग में मत जाओ। आप ये जाओ, मेरी एक जिंदगी चल रही है, मैं पैदा हुई, जी। अब ये अरे ये जिंदगी फिर गुजार रही हूँ, कौन सा आ मरूंगी। गया यार, ये क्या है इसे? एक सेकंड, अच्छा आप सारे हदीसों को अच्छा चेरी पिकिंग करके ओके ओके ओके, आप मुझे ये बताइए एमडी जी कि कुरान में अल्लाह ने कहां पे कहा है कि हदीस को फॉलो करो, मोहम्मद के हदीस को? फिर मौत पे आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। फिर- आप मुझे दिखाइए एमडी जी कुरान में से आया